Hello everyone, very good evening to one and all. Welcome to Startup and Career Show, and I'm Rushabh Mehta tuning in from Team Backstage. Today we have an interesting session coming in on knowing about non-coding career opportunities in tech. And for that we have Gaurav Gupta, founder of Scareboard, joining in. Hi Gaurav, welcome to Backstage. Hi, can you hear me? Is everybody able to hear me clearly? Yes, Okay. yes, Hi, I can hear Rishabh. you. Hi, thanks a lot for introducing me. Hi Gaurav. We also have Shashank. He's the founder of Backstage. Hi Shashank. Hi, Shashank. Hey Rishabh. Hey Gaurav. Hi. So he's joining us from New Jersey. Okay. It's a morning for him. Okay. Good morning, Shashank. Hey, good evening, Gaurav. Thank you. So, good evening, listeners. Let me briefly talk about Gaurav. He started coding when he was 8 years old and has founded Squareboard and Hacker.io, both very successful startups. He's a techie all his life and enjoys being involved in developing and maintaining large and scalable web and mobile applications end to end. Prior to Squareboard, he's worked for several top notch internet companies in India, including SlideShare, Educom, Naukri.com, Tata Institute of Fundamental Research. And when he's not working, he can be found exploring food, gaming, or pampering his cars. That's interesting, Gaurav. Thank you. Thanks a lot. So, Gaurav, one intriguing question that struck me was 8 साल की उम्र में आपने कोडिंग कैसे कर ली? मतलब how did you have so much clarity at such a tender age कि आपको लाइफ में क्या करना है? Yeah, good question. So what happened was that when I was a kid, it is very hard to believe for a lot of people, but computer science was a mandatory subject in our school from the first standard itself. तो हमारे स्कूल में क्या था कि जिस तरह से बाकी बच्चे हम लोग जैसे छोटे छोटे थे तो अपना साइंस और सोशल स्टडीज और ये सब पढ़ते थे, बट उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस हमारा एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बन गया था. तो मैं उस टाइम फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में था, तो मेरे को उस टाइम से लगा कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज समथिंग दैट आई फाइंड अ कनेक्ट विथ. तो नेचुरली उसी टाइम से मेरे को मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया. और हर चीज में जब भी हमारे पास एक कंप्यूटर लैब होता था, आई स्टिल हैव फॉन्ड मेमोरीज कि कंप्यूटर लैब था जिसमें हम लोग जाते थे, कोड करते थे, चीजों को मतलब देखते थे, स्क्रीन पे देखते थे और अच्छा लगता था. तो एकदम लगा कि हाँ यार, कि ऐसी एक चीज है जिसको साथ में कनेक्ट कर पा रहा हूँ. मुझे ऐसा भी लगने लगा कि दिस इज समथिंग विच माइट बी द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अगर आज मेरे पास ये एक चीज है, अगर कल को सबके पास ये एक चीज होगी तो शायद हम लोग सब इसको यूज करके बहुत बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में कर सकते हैं. तो उसी एज से सडनली एक इंटरेस्ट आया और फिर उसी इंटरेस्ट को मैं फॉलो करता चला गया. That's interesting, Gaurav, because जब बच्चे कार से खेल रहे थे तब आप कोडिंग कर रहे थे, Yes. और आज जब लोग कोडिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं तब आप पैम्पर कर रहे हैं कार्स को. That's a nice observation. Yes, that's absolutely true. पर ऋषभ डिफरेंस है ना, वो बच्चे छोटे टॉय कार से करते हैं, ये रियल कार से कर रहा है. That's correct. Absolutely. और So, एंड yeah, देन yeah, Shashank. ये आई थिंक लाइक वो व्हाइट हैट जूनियर करके कोई कंपनी है ना जो बच्चों बच्चों कोडिंग सिखाता है. Yeah, yeah. बिल्कुल. I mean, they are in the right direction, but they've been in the news for all the wrong reasons. Yeah, exactly. I was saying कि Gaurav would have been a good brand ambassador for them. That's absolutely true. I have absolutely no aversion towards kids learning to code at an early age, but just that they should be interested in it on their own. किसी भी चीज को फोर्सली Exactly. सिखाना इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग. बट अगर बच्चों को अपना इंटरेस्ट आ रहा है, उनको लगता है कि हाँ ये चीज उनके 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 फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट कर रही है, तो बाय ऑल मींस गो फॉर इट. कोड मैं तो एक ऐसी जनरेशन में था जहाँ पे व्हाइट हेड जूनियर तो क्या, वहां पे तो इंटरनेट भी नहीं होता था, तो हमने तब भी सीखा था. तो आई एम श्योर आज की तो जनरेशन के पास हमारे से कहीं ज्यादा मीन्स हैं, कहीं ज्यादा मीडियम्स हैं चीजों को सीखने के लिए, करने के लिए. True. वाह. तो शशांक, आपने जैसे अभी बात कर दी है तो भरोसा नहीं है, कुछ टाइम में हमें न्यूज भी आ सकता है कि गौरव इज एक्वायरिंग व्हाइट हैट जूनियर. I am waiting for that day. Yes, absolutely. Wow. True. So, Gaurav, can you talk about your journey right from working with the internet companies and then going on to found two different startups?
Yes, absolutely. So I'll start from the early days. See, so जैसे आपने बताया कि मैंने अपनी तरफ से I started coding at a very early age. The interest in coding was very prominent. So I remember कि अब जैसे मेरे पास अपने स्कूल में एक कंप्यूटर था जिसमें मेरे को प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा लगता था. One of my very close friends also had he was like a very from a very elite family, so he was one of my few friends जिनके पास actually अपने घर पे भी उस टाइम पे कंप्यूटर था. तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता था, तो मैं क्या करता था अपने स्कूल के बाद अपने पेरेंट्स से कुछ भी बहाना करके उनके अपने फ्रेंड के घर पे चला जाता था, ये बोलने के लिए पढ़ने जा रहा हूँ ये वो. और हम एक्चुअली क्या करते थे, हम बैठ के साथ में प्रोग्रामिंग करते थे. तो उस टाइम से इंटरेस्ट एकदम से कि हाँ दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, दिस इज समथिंग दैट आई एम एंजॉइंग. सो कभी भी मुझे वो एक तरीके से कोई सब्जेक्ट या कोई पेन नहीं लगा, हमेशा मेरे को एक अपना इंटरेस्ट लगा. धीरे धीरे करके जब मैंने अपना स्कूल के बाद अपना कॉलेज में एंट्री ली, तो मुझे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरे को मिली इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स का मुझे कोर्स में मेरे को एडमिशन मिला. पर मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि फिजिक्स वगैरह से नहीं नहीं होगा, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी इन द लॉन्ग टर्म. सो मैंने फिर उधर फिजिक्स ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज का क्विट करके देन आई मूव्ड ऑन टू वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT. उधर मैंने 4 साल पढ़ा कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद जब मैंने अपना 4 साल अपना उधर खत्म किया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे मैं अपने इस सारी सालों 10 साल हो गए थे उस टाइम मुझे प्रोग्राम करते करते. तो मुझे लगा था कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे मैं इन सारी नॉलेज को यूटिलाइज कर सकूँ. तो ऑल्दो मेरे पास काफ़ी MNCs वगैरह के ऑफर थे, बट मैंने फिर उनमें से कोई भी ना चूज करके फिर मैंने छोटी सी कंपनी उस टाइम थी स्लाइड शेयर, मैंने वो ज्वाइन करी. अब वो छोटी सी कंपनी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन करी थी तो उस टाइम शायद टोटल 5 एम्प्लॉइज थे कंपनी में, और उनमें से 2 तो फाउंडर्स ही थे. तो मैं जब ज्वाइन किया तो उस टाइम मैं 3rd या 4th एम्प्लॉय था अपने इंडिया ऑफिस में. तो उस टाइम पे बस हमने चीज़ों को देखा ही, स्टार्ट करा ही था बनाना. पूरा प्रोडक्ट जो स्लाइडशेयर का था वो एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वेबसाइट थी, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन शेयरिंग वेबसाइट थी. धीरे धीरे करके करते करते वो कंपनी बहुत बड़ी होती चली गई, और एक पॉइंट पे लिंक्डइन ने उसको खरीद लिया, कंपनी को एक्वायर कर लिया. तो वो पूरी जर्नी मैंने बिल्कुल कंपनी के बिल्कुल पहले स्टार्टिंग के दिनों से लेके बिल्कुल उसके एक्विजिशन तक ऑलमोस्ट सारी जर्नी को मैंने अपने आंखों के सामने देखा. उस पीरियड में बहुत सीखा, देखा कि अच्छा ये कंप्यूटर साइंस कॉलेज लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे इतनी फर्क कैसे होती है, क्या होती है. उसके बाद फिर स्लाइड शेयर में मैंने 3 साढ़े 3 साल काम किया. उसके बाद एक एडटेक कंपनी थी जो मैंने जिसके अंदर मैंने ज्वाइन किया, उसका नाम था एडुकॉम्प. तो एडुकॉम्प में क्या था कि वो एक स्मार्ट क्लासरूम करके प्रोडक्ट उनका बड़ा फेमस होता था कुछ साल पहले. तो उसके साथ और भी उनके प्रोडक्ट्स थे, तो उनके दूसरे प्रोडक्ट में मैंने उनकी टीम को ज्वाइन किया, इंजीनियरिंग टीम को ज्वाइन किया. उधर अबाउट 1.5-2 साल मैंने काम किया, और उसके बाद फिर मैंने 2 साल काम किया Naukri.com में. तो Naukri.com जो कंपनी है जो आप में से कई लोग जानते होंगे पहले से, जहाँ पे जॉब्स वगैरह पब्लिश होती हैं, लोग अप्लाई करते हैं, जॉब्स कंपनीज जॉब्स पोस्ट करती हैं. उस कंपनी का एक प्रोडक्ट है रेजिडेक्स, जिसकी जो उस कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्रोडक्ट्स है. तो उस टीम में मैंने ज्वाइन किया, उधर मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 साल काम किया. तो मोटा मोटा पिछले 5-6 साल काम करने में मेरे को ये समझ आ गया कि एक स्टार्टअप की लाइफ क्या होती है और एक एस्टैब्लिश्ड बड़ी कंपनी की लाइफ क्या होती है. सारे पहलू मैंने देखे. 2013 तक लगा कि हाँ मैंने 6-7 साल काम कर लिया है, अब मुझे कॉन्फिडेंस भी है, समझ भी है, और अकाउंट में थोड़ा पैसा भी है, तो चलो क्यों ना हम इसको यूज करें, और हम लोग फिर इसके बाद एक अपनी कंपनी को स्टार्ट करें. तो 2013 में फिर अपनी कंपनी को स्टार्ट करने का हौसला आया, और उसको फिर अल्टीमेटली उसको थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए जो भी उसके लिए मीन्स थे वो इकट्ठे करे, और उस कंपनी में इन्वेस्ट करा और स्टार्ट किया. तो अब 8 साल होने वाले हैं कंपनी को. तो तब से कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा टीम एस्टैब्लिश करी है मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अच्छे क्लाइंट्स आए, अच्छे लोग, अच्छे काम आया. तो वो सब चीजें अभी हम ग्रो कर रहे हैं, उस फेज में है कि अभी हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में ही है, ग्रोइंग स्टेज में है. तो अभी हम उस स्टेज में है वेयर वी आर वर्किंग विद सेवरल क्लाइंट्स. उनके हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं, डिजाइन का काम कर रहे हैं, डेवऑप्स का काम कर रहे हैं. तो काफी सारी चीजें हम लोग साथ में करते हैं, और कंपनी को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं. तो कई कंपनी के जो सबसे प्रोमिनेंट क्लाइंट जिनका नाम आपने सुना ही होगा, PVR सिनेमाज जैसे हो गया, पैसा बाजार हो गया, डंजो हो गया, और इस तरह की जो कंपनीज हैं वो सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, और हम इन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम अभी कर रहे हैं. तो ये एक क्विक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी. अगर Rushabh and Wow. Shashank, anything you would like to know, I'm happy to answer that. Yes. So Gaurav, I think that's very fascinating journey for all these years.
but I'll want to ask you specifically about your experience at SlideShare. Yeah. Because उस टाइम पे आपके आपके पास ऑप्शन था टू जॉइन ऑन MNC, Yeah. बट आपने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, राइट? सो हाउ वाज योर मतलब व्हाट चेंज्ड, एनी पर्सपेक्टिव अगर आप दे सकते हो उस दौरान एक फ्रेशर के लाइफ में, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर लिसनिंग अस लाइव टुडे, राइट? उनके लिए काफी रिलेवेंट रहेगा ये. इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन योर एक्सपीरियंस इन SlideShare स्पेसिफिकली. या बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो आई थिंक हर एक फ्रेशर जो ग्रेजुएट कर रहा होता है उसके लाइफ में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं एक TCS इन्फोसिस टाइप एक स्टेबल जॉब पकड़ूं, या फिर मैं एक रिस्की एंड वेल हाई रिस्क एंड प्रोबेबली हाई रिवॉर्डिंग स्टार्टअप जॉब के साथ अपना करियर स्टार्ट करूं. तो मेरे पास भी ये क्वेश्चन था अपने करियर के स्टार्टिंग में. तो मैंने अपनी तरह से क्या सोचा कि अगर मैं कोई TCS, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि TCS की जॉब में कोई खराबी है या स्टार्टअप की जॉब में कोई खराबी है, दोनों अपने अपने तरीके से दोनों अच्छे हैं. बट मेरा मन था कि मैं अपने काम के थ्रू एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ उस कंपनी में जिस कंपनी में मैं जुड़ा हुआ हूँ. तो मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं TCS जाता हूँ तो मैं एक 10,000 20,000 लोगों की कंपनी में एक छोटा सा प्रोजेक्ट का छोटा सा पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा, ठीक है. जबकि SlideShare जैसे एक छोटे से स्टार्टअप में मैं शायद, कंपनी बड़ी छोटी होगी, प्रोडक्ट भले ही छोटा होगा, बट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ग्रोथ स्टोरी का मैं एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन जाऊंगा. तो अगर मेरी टीम में 5 लोग हैं तो कह सकते हैं कि 20% काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अकेले की है. वेराज अगर मैं TCS का काम देखूं तो उस 10,000 एम्प्लॉइज 20,000 एम्प्लॉइज की जो टीम है, TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कोई भी हो, इनमें तीनों में इनमें मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है, जो मेरे काम के भरोसे जो भी पर्टिकुलर पार्ट में डिलीवर कर सकता हूँ, दैट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज. तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे लिए वो एक स्मॉल परसेंटेज का काम करना, उसको डिलीवर करना मेरे को ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं लगा उस टाइम पे. मुझे लग रहा था कि आई वांट टू डू बिगर थिंग्स, आई वांट टू वर्क ऑन बिगर स्टफ. तो इस वजह से मुझे वो स्टार्टअप वाली जॉब ज्यादा अपीलिंग लगी. हाँ, इस बात में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं था कि मेरी फैमिली में सब कन्विंस थे मेरे डिसीजन के बारे में. कई लोग ये कह रहे थे कि यार ये, मतलब लोग उस टाइम कहते थे कि ये तो 2 कमरे की कंपनी है. उस टाइम मेरे को ऐसे कमेंट्स आते थे कि इस कंपनी में क्यों जा रहे हो. तो बट किसी को समझाना बड़ा मुश्किल था लोगों को कि इस 2 कमरे की कंपनी में मुझे क्या बेनिफिट दिख रहा है जो कि मुझे उस मल्टी कैंपस कंपनी में नहीं दिख रहा है. ये चीज थोड़ा समझना थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होता था. और ये तब की बात है जब स्टार्टअप की दुनिया जो शुरू ही हुई थी इंडिया में. आज की डेट में तो मेरे ख्याल से काफी लोग समझते हैं कि स्टार्टअप क्या होती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या होते हैं. बट उस टाइम थोड़ा फर्क था माहौल, उस टाइम थोड़ा सा चीजें शुरू ही हो रही थी. तो मेरे को थोड़ा ज्यादा मुश्किल होती थी अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए कि किस तरीके से मेरे को स्टार्टअप की जॉब प्रेफर करनी है और क्यों करनी है. So which year was this? This was 2007. 2007. Yeah. Cool. क्योंकि I was about to ask the same thing because उस टाइम स्टार्टअप इतने थे भी नहीं 2007 में, if I remember correctly. Yeah. Basically, if you will Google हाँ. for startups in Delhi, and if you land up on a blog randomly, then you would probably see 7 or 8 entries in that list. That's all. Yeah. So Gaurav, before we take about the topic, right? एक question I wanted to ask you about your company, right? Squareboard. Yeah. How did you go about building it in the first place? Because ठीक है, एक आपको बनाना थी कंपनी, वो सब सही बात है, but the point is now that you have so many big clients, so if you can talk that journey. Yeah. So मतलब लोगों का ये बड़ा कॉमन बिलीफ है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, लेट मी confirm that by saying that yes, it is difficult, and let me also add that it is more difficult than your definition of difficult. बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल आती है किसी भी कंपनी के इनिशियल स्टेजेस में व्हेन वी हैव टू गेट समथिंग गोइंग फ्रॉम ग्राउंड अप, क्योंकि आपके पास सिर्फ अपना बिलीफ होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता उस टाइम कंपनी में स्टार्ट करने के लिए. यू हैव नो एम्प्लॉइज, यू हैव नो ऑफिस, यू हैव नो मनी, यू हैव नो क्रेडिबिलिटी, नो ब्रांड, नो क्लाइंट्स. आपको सब कुछ शुरुआत से शुरू करना होता है. तो उस टाइम पे जो चैलेंजेस आते हैं दे आर वेरी 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 एनॉर्मस. और मुझे मेरा पर्सनली भी ये बिलीफ है कि इफ यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी फॉर जस्ट द फाउंडर टैग और फॉर द मनी or for whatever else that you think that you want from that company, so I think that you will never be successful. But if you are starting the company to achieve a vision that you wanted to achieve, I think you will be 100% successful. जैसे मैंने अपने लिए सोचा हुआ था कि मैं किसी भी हालत में there is no plan B for me. This company is the only thing that I'm going to invest 100% of my time on, and there is no going back at all. और वो बिलीफ के साथ ही आगे चला.
और उसी पार्ट में थोड़ा सा अपना सारा अपना जितना भी मेरे पास टाइम एनर्जी जितनी भी थी सारी वो लगाई। और ग्रेजुअली सी बहुत टाइप के चैलेंजेस आते हैं, लोग आपको एक इनिशियल स्टार्टअप को ज्वाइन करने में कभी कभी हेजिटेंट होते हैं, उसके बाद आपके क्लाइंट्स आप पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आपके पास एक दो एम्प्लॉयज ही होते हैं, काम आपके पास कुछ और ज्यादा दिखाने के लिए होता नहीं है, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं टू गेट थिंग्स गोइंग ऑफ द ग्राउंड. As a founder, I strongly believe that my role is of a decision maker. I have to take thousands of decisions every day. And if I am able to achieve 95% success rate in my decision making, then the company is on the right track. अगर मेरा एक डिसीजन दो डिसीजन गलत हो जाते हैं which steers the company in the wrong direction, then no matter what I do, no matter how hard work I put in, I will not be able to steer the company in where I want. तो इसीलिए मेरे को लगता है कि पर्सनली कि एक विजन और एक डायरेक्शन अपने अंदर होनी जरूरी है कि मुझे कंपनी को यहाँ लेके जाना है। अगर आप वो डायरेक्शन आपके पास नहीं होगी तो आपकी सारी डिसीजन मेकिंग गड़बड़ा जाएगी, कभी आप कुछ करेंगे कभी आप कुछ करेंगे। बट अगर आपके पास एक डायरेक्शन होगी कि मुझे कंपनी की ग्रोथ के लिए मुझे ये रास्ता चुनना है, तो आपके सारे डिसीजन फिर नेचुरली उसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये मेरी एक अर्ली लर्निंग थी अपनी कंपनी के साथ। Wow, that's interesting. And Gaurav, maybe initial one more question on that कि आपने starting के clients लाए कैसे? हाँ, तो इसमें मेरे को लगता है कि मेरे जो जॉब के एक्सपीरियंस था ना, जो मेरे 6-7 साल का जो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस था, दैट इज व्हाट हेल्प मी टू एटलीस्ट बूटस्ट्रैप टू सम एक्सटेंट। तो जैसे 6-7 साल मैंने करे तो मैं अपनी तरफ से आई वाज अ वेरी मैं एक्सट्रोवर्ट तो नहीं बोलूंगा बट अ गुड नेटवर्किंग गाय इन द सेंस दैट आई यूज्ड टू नेटवर्क अ लॉट विद माय फेलो कलीग्स। आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई गो इनटू ऑल दीज, उस टाइम पे डेवलपर इवेंट्स बहुत होते थे दिल्ली एनसीआर में, कोरोना की वजह से तो अभी नहीं हो रहे, बट दिल्ली एनसीआर में इस टाइप के इवेंट्स बहुत होते थे एक जमाने में। तो आई यूज्ड टू एक्टिवली अटेंड दोज इवेंट्स, स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल। आई हैड अ वेरी डिसेंट नेटवर्क बाय द टाइम दैट आई वाज 6-7 years into my job. तो जैसे ही मैंने अपनी तरफ से अपनी कंपनी स्टार्ट करी तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि मैंने सबको फोन किया, सबको मेल करी, सबको मैसेज किया कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कोई भी रिक्वायरमेंट है आईटी की, टेक्नोलॉजी की, सॉफ्टवेयर की, तो आप प्लीज मुझे याद करना। सो होता क्या है कि उस टाइम आप देखा जाए तो अगर इतना मुश्किल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि आप अकेले ही हो या आपके साथ एक दो इंटर्न्स हैं या छोटे मोटे कुछ अगर आपने डेवलपर्स अगर स्टार्टिंग बहुत ही अर्ली स्टेजेस में हायर करे हुए हैं, तो आपके खर्चे भी ज्यादा नहीं होते और आपकी इनकम भी ज्यादा नहीं होती। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि आप अपनी तरफ से स्टार्ट करते हैं, पहला दूसरा क्लाइंट अपना लाते हैं, उनके लिए भी मतलब यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग। सो व्हाट आई डिड वाज दैट आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई एम चार्जिंग वेरी रीजनेबल अमाउंट्स, बिकॉज उस टाइम मेरे लिए प्रॉफिट से ज्यादा अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना ब्रांड बनाना ज्यादा जरूरी था। तो उस टाइम पे जो भी हमने प्रोजेक्ट्स हमको मिलते थे उस प्रोजेक्ट्स में आई यूज्ड टू मेक श्योर कि एटलीस्ट मैं ऐसा ऐसा कोट या एक ऐसा एस्टिमेट दूं कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार दिस seems like a genuine cost, this seems like a very reasonable cost, और हम उसके साथ कोई compete ही ना कर पाए। मतलब there is no way on earth that any other company or any other company of my size can ever compete with the quotation that I was giving, knowing very well that I am underpricing things, knowing very well that I know I am maybe not even able to make some kind of profit on this project, but मैंने फिर भी वो start करा ताकि धीरे धीरे करके एक नेटवर्क बने, एक कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट बने, एक कंपनी का एक थोड़ा थोड़ा एक ना रेपुटेशन बने। और ग्रेजुअली व्हाट आई सॉ वाज कि मैंने सिर्फ ये ध्यान रखा कि मेरा काम में कोई कमी ना आए। अगर मैंने ये नहीं देखा कि मेरी मार्केटिंग कितनी अच्छी है, मेरी सेल्स कितनी अच्छी है, मैंने देखा कि मेरा काम कितना अच्छा है। अगर मैं अपने काम पे फोकस करता चला गया तो वो काम जब लाइव हुआ, प्रोडक्ट लॉन्च हुए, जो फाउंडर्स थे उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने अपने आप ही देखा कि हाँ ये बंदा लग रहा है कि अपना काम अच्छा करना जानता है। तो उन्होंने ही फिर हमको आगे अपनी तरफ से अपने और नेटवर्क में रिकमेंडेशंस, रेफरल्स देने शुरू करे, और ग्रेजुअली वही पूरी चेन है वो आगे आगे चलती चली गई और उसी से ही आगे से क्लाइंट हमको मिलते चले गए। Wow, interesting, Gaurav. On that note, there is a listener called as Ashi, and उसने text में लिखा है, Gaurav, and I'll read it out for you. Yeah. She's asking, sir, you mentioned that there are numerous things that you do to build credibility when a business is set up. Can you share a client-based instance that made you think that you have finally settled the base and are ready to scale? Okay. So client based instance, basically I think one of the things that I really look forward to is when I deploy a project, I think one of the things that I really look forward to is the client acknowledging what we have done for them. And 9 out of 10 times what I've seen is that yes, people do take out the time
to come back to us and say thank you, and they sometimes, invite me over for a party or a dinner or whatever it is. So कहीं ना एक उस पर्टिकुलर काम की डिलीवरी के बाद जो सामने वाले बंदे की, जो हम लोग, मैं तो हमेशा अपनी तरफ से ये सोचता हूँ एज अ बिजनेस की, वी फॉर अस, इट्स अ प्रोजेक्ट, इट्स अ टेक्निकल प्रोजेक्ट, बट फॉर द पर्सन ऑन द अदर साइड इट इज हिज लाइफ, राइट? वो जिस स्टार्टअप के साथ, हमारे साथ जिस भी प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़ रहा है, हम अगर उसको एक टेक्निकल प्रोजेक्ट की तरह सोचना शुरू कर देंगे तो वी मे नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू इट. वी हैव टू थिंक अबाउट इट इन द वे दैट we are building or betting on a product which is going to be somebody else's bread and butter or his lifetime vision for a long time. So उस हिसाब से अगर हम प्रोजेक्ट को सोचेंगे और उस बंदे की जब हमको सेटिस्फैक्शन और अप्रिसिएशन मिलेगी, दैट इज व्हाट आई काउंट एज सक्सेस. And the moment I get that success, it tells me कि हाँ, this is a job well done and now I am ready for the next one. तो मेरे लिए सबसे बड़ा मेट्रिक जो है वो उस प्रोजेक्ट में कमाया हुआ पैसा नहीं है, वो उस प्रोजेक्ट का अपना सक्सेस है. By seeing the founder becoming successful once I deliver the project, I think that success, that feeling of success that I am able to deliver to the other person is what I count as my own success. Wow, that's awesome, Gaurav. So coming to the topic now, Yeah. right? So you've done coding all through, Gaurav, Yeah. right? You know all nuances of it. Yeah. But what are the non-coding opportunities in tech industry, right? इस तरह से होता है. And because you also mentioned to me earlier in the conversation, when we were discussing, you said that you come across such questions quite often, Yeah. right? So if you can throw some light on that. Yeah, absolutely. So, this will be a detailed answer. So, students who are listening, if you want to take some notes also, please do take some notes, because you will, I mean, some of these answers may already be familiar to you, but still I would like you to explore these options later on, as you do your Googling and try to find a good job for yourself once you graduate. So, IT jobs are not limited to coding jobs, right? That's one thing, that's a myth that most people believe in, that if I'm doing a job in a software company, then I'm coding, right? That's not true. That's not true at all. Actually, there are many jobs in the IT industry which require absolutely no coding experience. You can still be very well associated with an IT company. You can still be a part of the core team, but still not have even the most slightest of coding experience, right? So that is absolutely possible. और ऐसे कौन से career avenues हैं? I think let's start with a few of them, ठीक है? So the first one and by far the easiest one is the QA job. QA का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, ठीक है? इसके बहुत सारे सिनोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे. QA is quality assurance. इस तरह से QC होता है quality certified. Then there is something called SDET, which is software development engineer in test. There are many synonyms of this job, but mota this job is about software testing. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये जॉब होती है कि जब आपकी इंजीनियरिंग टीम कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के फीचर को बिल्ड करती है, कोड करती है, तो जो क्यूए इंजीनियर होता है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर काम को टेस्ट करता है. टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो ये चेक करता है कि क्या ये फीचर, ये प्रोडक्ट अपना डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है? एज एन एग्जांपल, अगर मैं एक इंजीनियर हूं और मैं अपनी तरफ से एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूं, तो क्या मैं अपनी तरफ से जो मैंने प्रोडक्ट को खरीदने का जो मैंने फ्लो कोड किया है, क्या वो फ्लो एज पर एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि नहीं, ठीक है? अगर ये चीज चल रही है उस तरीके से, तो फिर देन आई एम गोइंग टू मार्क दिस पर्टिकुलर फ्लो एज टेस्ट पास्ड. If I'm not satisfied with the way that this particular feature is working, then what I will be logging is something called a bug report. तो मैं एक बग रिपोर्ट करूंगा, उस बग को मैं डेवलपर को जाके समझाऊंगा, वो डेवलपर उस बग को फिक्स करेगा और फिर वो बग फिक्स करके वापस मेरे पास आएगा टेस्टिंग करने के लिए, मैं उसको अप्रूव करूंगा. Then only the particular feature will be marked as ready, and then it will be deployed and sent to further testing or sent for production release and for people to actually use the product. तो ये QA की जॉब ऐसी होती है. सबसे अच्छी जॉब इसमें ये होती है, कुछ नहीं करना होता है, कोई कोडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बेसिकली दूसरों की गलतियां निकालनी होती है, विच इज फन इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? तो अपनी तरफ से हमको ये देखना है कि हमारे पास एक शार्प माइंड होना चाहिए कि हम लोग ये देख सके कि अच्छा, जो गलती डेवलपर ने करी, हम इतने शार्प होने चाहिए कि हम उसको पकड़ सकें. बस अगर हमारे पास एक शार्प माइंड है, एनालिटिकल माइंड है,
तो हम लोग उस पर्टिकुलर मिस्टेक को कैच कर सकते हैं और उस मिस्टेक को कैच करके हम ये डेवलपर को बता सकते हैं, और दैट इज द रोल ऑफ अ क्यूए जॉब. तो अगर हम अपनी तरफ, अगर आप में से कोई भी बंदा ये इस पर्टिकुलर जॉब को लेके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. इस जॉब में आपको एक बीटेक की डिग्री, एक नॉर्मल टेक्निकल डिग्री से काम आपका हो जाता है. इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई एमबीए की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. और अगर आप क्यूए का करियर देखना चाहें तो क्यूए इज अ वेरी गुड, इज अ वेरी वेल पेइंग करियर ऑल्सो. हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिले, बट एज यू विल ग्रो इन योर करियर यू विल फाइंड वेरी गुड, वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज विद वेरी गुड सैलरीज. तो एक ऐसा जॉब है जो आपके लिए लाइफ टाइम आपको एक अच्छा आईटी प्रोफेशनल का ग्रोथ कर्व दे सकता है. सो आई विल टेक अ पॉज बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट करियर ऑप्शन. अगर किसी के कोई सवाल हो, और मे बी maybe Rishabh and Shashank, if you would like to add on something or ask something, otherwise I'll move to the next career option. No, I think you explained it very well actually. और सबसे मजे बात है कि दूसरों की गलतियां निकालना है, तो इससे मजा क्या आएगा. Yeah, absolutely. So this is the QA job. ठीक है, हमारी कंपनी में भी we have QA engineers, and if you can just go to LinkedIn or Naukri.com and just see कि there are several positions of QA engineers which are open, and they are very reasonably well paying jobs, and also very much a very core IT job, right? तो एक तो हो गया हमारा QA. Now the next job that we will talk about is the job of a project coordinator or a project manager. ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर की जो जॉब होती है, ऑल्दो ये कहने को तो थोड़ी सीनियर पोजीशन हो जाती है, बट यू कैन फाइंड दिस जॉब इन अर्ली स्टेजेस ऑल्सो. तो जो आपका जो काम होता है एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, वो होता है कि आपको अपने टीम मेंबर्स में कोऑर्डिनेट करना है ताकि प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्टली अपने शेड्यूल के हिसाब से चले. तो होता क्या ना कि जैसे जो डेवलपर्स जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो दे आर ऑल सो बिजी एंड सो ऑक्यूपाइड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि शायद कभी कभी वो भूल जाते हैं कि प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए वी नीड टू ऑल्सो मेक श्योर दैट अदर पीपल आर ऑल्सो वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर एक प्रोजेक्ट में लेट्स से 10 डेवलपर काम कर रहे हैं और 5 क्यूए काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एक कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है प्रोजेक्ट के टीम के अंदर जो ये देख सके कि पूरा प्रोजेक्ट इटसेल्फ, क्या पूरा प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक है कि नहीं. ठीक है, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. और ऑर्केस्ट्रा जैसे स्टेज पे चल रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि ऑर्केस्ट्रा के सामने एक बंदा खड़ा रहता है जो कि पूरे ऑर्केस्ट्रा को साथ में साइमल्टेनियसली सिंक में रखता है. तो इट इज वेरी सिमिलर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ पर्सन हु इज इन द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट who is doing nothing but making sure that the project is fully coordinated and every team member is performing his or her role in the designated timeline. ठीक है, तो ये जो रोल होता है इसमें भी अगेन यू डोंट नीड एनी स्पेशल coordination skills, sorry, you don't need any special coding skills, but you do need a good sense of managerial skills. अगर आपके पास एक MBA डिग्री ना भी हो तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए, बट आपके पास अगर अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं, इफ यू फील दैट यू आर अ पीपल्स पर्सन, इफ यू फील दैट यू नो हाउ टू गेट द जॉब डन विद अदर पीपल, तो ये करियर आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से लोगों के साथ काम करके उनको उनका काम बता के उनसे स्टेटस लेके प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करके एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑप्शन and also a very well paying option. So in the long term, if you choose the career path of a project coordinator or a project manager, then it will be something that you will be able to have a very long and very successful career with. So I'll again take a pause. Any questions that you have around project coordination or project management, please put it in the chat. Otherwise I'll move to the next question. इस particular job के लिए some level of, yeah, so Rahul, I think you have a question. Please feel free to post your question. Otherwise, I'll move to the next job. So Gaurav, you explained it pretty well, right? As an orchestra की तरह जैसे अपने layman को समझाया, Yeah. right? In also the fact is there are certain certifications also there, right? Like a say PMP. Yeah. So basically these are courses जो कि हम लोग मतलब जो project coordinators and project managers can do apart from their regular college studies. These courses are very tailor made to teach you the basics of project management, and some companies are definitely going to look for it as well. मतलब अगर कोई बंदा बहुत ही अर्ली स्टेज में अपने करियर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ कोर्स को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन चुनना चाहता है, तो some companies will definitely give preference to people who have a PNP background or they have done similar kind of courses. तो अगर आपको लगता है कि you want to take up this as a career option,
it will be definitely beneficial if you take up some of these courses alongside as well. So on similar lines, Gaurav, Rahul has asked the question as well. Yeah. What are the top 3 skills that a project manager should work on, Yeah. and the courses that you suggest? Yeah. तो PMP का जो हमने बात करी है, I think course wise, so I think you already discussed a little bit. Primarily from a skill perspective, I think it's more about people management. It's all about time management and work management. तो 3 चीजें हैं जो आप साथ में काम कर रहे हो, जिनके साथ आप मतलब basically your day on your job on a day-to-day basis is about managing your work, the timelines, and the people that you are basically dealing with. So if you are good at all three, then it makes you a very good successful project manager in the long term. तो क्या लोग काम कर रहे हैं, क्या वो उसको टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, और क्या आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उस पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए, आर दीज पीपल जनरली सेटिस्फाइड with the work that is being delivered. It's like a bridge. Mother, think about a project manager job as a bridge between the developers and the client. अब एक क्लाइंट है, मेरे को एक लेट्स से एक पर्टिकुलर, हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक, जैसे मैं आपको छोटा सा नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ कि हम एक लेट्स से एक फ्लाईओवर बनाना है किसी रोड पे, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास एक गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आता है कि यार ये फ्लाईओवर बनाना है. अब जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है जो चाहता है कि वो फ्लाईओवर बने, उसको स्टेटस उसका मिलते रहे, अब वो जाके सीधा इंजीनियर से तो पूछेगा नहीं जो उस पर काम कर रहा है कि भाई कितना हो गया, राइट. वो किसी एक बंदे को बोलेगा जो सारे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहा है, देख रहा है कि भाई सड़क कितनी बन गई, कितने वो हो गए, कितने पिलर्स डल गए, वो एक पूरा ओवरऑल पिक्चर लेके चल रहा है अपने साथ. हम उस बंदे को प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं जो सामने वाले पूरे प्रोजेक्ट का फुल बर्ड्स आई व्यू देख रहा है और वो समझ रहा है कि इस टाइम कौन से प्रोजेक्ट का कितना पार्ट हो गया है, कौन सा पार्ट कितना बचा हुआ है, कहाँ पे हम लोग टाइम से आगे चल रहे हैं, कहाँ हम टाइम से पीछे चल रहे हैं. इस टाइप के डिसीजंस, इस टाइप की नॉलेज उस प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है और वो सारी नॉलेज वो आगे क्लाइंट्स को रिपोर्ट करता है और डेफिनेटली अपनी टीम को गाइड करता है कि अगर हम कहीं डिलेल हो रहे हैं, कहीं हम लेट चल रहे हैं, कहीं हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं अपने शेड्यूल से, तो उसको मैनेज करना, उस पर्टिकुलर चीज को संभालना और इफ रिक्वायर्ड, इफ मैटर को एस्केलेट करना. तो ये एक मेनली ये काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का. तो आई होप कि थोड़ा सा समझ आइडिया लग गया होगा सब लोगों को. ऑब्वियसली दीज आर वेरी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस, बट आपको सिर्फ एक हाई लेवल बता रहा हूँ कि किस तरह की चीजें मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर एक डे टू डे बेसिस पे करता है, राइट. So Gaurav, I think you explained it very well. No doubt about that. Right, and I think Rahul also mentioned this. Vilcha has asked another question. It says, since we have no idea of who a project manager is because we have no formal education, do we need to go for a formal course or can learn on the job too? Yep. So I'll take that up. So now there is no standard yes or no on this one because it also varies from company to company. Some companies, for example, जब हम लोग hiring करते हैं Square Boot में, तो we hire purely on the basis of potential. We don't look for any kind of अटेस्टेशन टू दैट पोटेंशियल. मतलब हम कोई डिग्री, कोई पर्टिकुलर कोर्स हम लोग फॉर एग्जांपल नहीं देखते. हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा बंदा कैपेबल है, क्या उसमें वो स्किल्स हैं जो हमें चाहिए, क्या वो बंदा उस पर्टिकुलर करियर में इंटरेस्टेड है, तो हम लोग उसको हायर कर लेते हैं, राइट. बट देयर आर अदर कंपनीज, स्पेसिफिकली द स्लाइटली बिगर और स्लाइटली ट्रेडिशनल कंपनीज, उनमें कई जगह देखा जाता है कि अच्छा इसके पास एमबीए है, अगर एमबीए नहीं है तो एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया हुआ है, एटलीस्ट एक पीएमपी करा हुआ है. इस तरीके की मतलब आपको कंपनीज भी मिलेंगी. एंड आई वुड वांट टू अज्यूम कि द लैटर पार्ट इज द मोर कॉमन वन. तो अगर हम एक स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में आई डोंट थिंक कि लोग इतना फर्क पड़ता होगा लोगों को फॉर्मल एजुकेशन से. बट जहां तक रही थोड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसी कंपनीज, इनमें मेरे ख्याल से लोग थोड़ा सा फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल कोर्सेज के बारे में they will have to worry. तो if you think that you want to go for a project management job, तो कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा अपने 3 से 6 महीने लगा के आप इन कोर्सेज को कर लीजिए. you also have the option of doing these courses online and you can use that power, that skill to maybe perhaps enhance your CV and use that as a basis to find a good job. और ये एक ऐसी जॉब है जहां पे आपको हो सकता है कि पहले और दूसरे जॉब में तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट एक बार आपके सीवी पे आ जाएगा ना कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन का जॉब कुछ दिनों तक करा है, कुछ महीनों तक करा है, तो उसके बाद फिर देन देयर इज नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज. में आपको कोई लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हैं इस करियर में. देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ जॉब्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. Interesting. Yeah. How much coding experience account executive requires? So I'm not very sure about what account executive mean. Is that when you say account executive, can I assume that it is a project management executive is what you're talking about?
ये तो अकाउंट मैनेज करता होगा कि अकाउंट क्लाइंट्स को. आई एम प्रिज्यूमिंग दैट इज व्हाट प्रणय इज आस्किंग. Well, हाँ. So Pranay, if the answer is that how much coding experience does a project manager need? So answer is zero. But इसका ये भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि if you have coding experience, it's always a plus point. But technically, if you are a project manager and if you have never done any coding in your life, that is also absolutely fine. ओके, की अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का मुझे इतना आइडिया नहीं है प्रणय. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पार्ट, सो मैं उस क्वेश्चन को भी स्किप करना चाहूंगा. उसके बाद यू स्टार्टेड योर जर्नी विद अ स्मॉल स्टार्टअप एज स्टूडेंट्स बी इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स ब्रांड्स. इज एन एमएनसी अ बेटर ऑप्शन और लर्निंग ऑन ग्राउंड इन अ स्टार्टअप इज बेटर? तो अ स्टार्टअप इज अ ब्रांड इन द मेकिंग. तो ये भी आप सोच सकते हैं कि you want to join a company which is about to become a brand and you want to be a key executive of that particular brand, या फिर you want to join yourself with a company which has already established itself as a brand and you want to ride on the wave of success that this company has already established. It's a very mindset thing. अगर आपको लगता है कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब सेफ्टी, इफ यू आर लुकिंग फॉर वेरी स्टेबल जॉब जिसमें कोई रिस्क नहीं है, अपना नॉर्मली अपना जॉब का कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड का प्रेशर नहीं है, तो आई थिंक एस्टैब्लिश कंपनी इज जनरली अ बेटर ऑप्शन. बट इफ यू आर द रिस्क टेकर माइंडसेट, इफ यू वांट टू रियली वर्क हार्ड, यू आर ओके विद अनसर्टेनिटी, यू आर ओके विद द फैक्ट कि हो सकता है मेरी पूरी मेहनत किसी पर्टिकुलर कंपनी में हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना भी हो, तो यू आर ओके विद इट, तो स्टार्टअप्स विल बी अ स्लाइटली बेटर चॉइस फॉर यू इन माय ओपिनियन. So moving on, so my next particular job option here is also the job of a UI UX designer. Now UI UX designer कौन होते हैं? UI UX designer वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट का इंटरफेस डिजाइन करते हैं, इंटरफेस और एक्सपीरियंस. ठीक है, तो जब हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इमेजिन करते हैं, हम कोई पर्टिकुलर ऐप को इमेजिन करते हैं, उबर, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी आप अमेजोन, कोई भी आप सोच सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप उस ऐप को खोलते हैं तो एक सर्टेन तरीके से आपको उसका पेज डिजाइंड मिलता है. बटन्स होते हैं, उस पर मैप होता है, उस पर कोई बट मतलब एक सर्टेन तरीके से वो उसका डिजाइन होता है ताकि आपको नेचुरली समझ आ सके कि ये ऐप क्या करती है. आपने कोई ऐप खोली होगी, उसके बाद आपने देखा होगा, कभी ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा, जैसे आप अगर वैसे सोचें, आपने जब कभी लास्ट अपना टीवी खरीदा था तो आपके साथ रिमोट कंट्रोल के साथ आपको एक मैनुअल मिला था जिसमें बताया गया था कि ये रिमोट कंट्रोल कैसे चलता है. ठीक है, बट हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमें उसके साथ कोई मैनुअल नहीं मिलता कि ये ऐप कैसे चलती है. तो उसका रीजन क्या होता है कि जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है जो उस ऐप को बना रहा है, उसका काम ये है कि हम इस तरह से अपनी ऐप को बनाएं कि सामने वाले बंदे को उस ऐप का यूज केस नेचुरली समझ आ जाए, बिना किसी मैनुअल के या बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के. तो एक अच्छा यूएक्स यूएक्स डिजाइनर वो होता है जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना सके, सिंपल प्रोडक्ट बना सके, जो सामने वाले को बिना किसी प्रॉब्लम के समझ आए. इसी वजह से जैसे एप्पल जैसी कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट डिजाइन और अपने ऐप डिजाइन, अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन को लेकर इतनी फेमस हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो ऐसे डिजाइन बना पाती हैं जो कि लोगों को बिना किसी हेडेक के, बिना किसी स्ट्रेस के समझ आते हैं और नेचुरली यूज कर पाते हैं, वो जिस तरीके से अकस्टम्ड हैं बाकी चीजों को यूज करने के लिए. अब एक अच्छा यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए भी आपको एक क्रिएटिव माइंड तो डेफिनेटली चाहिए, बट आपको कोई कोडिंग स्किल नहीं चाहिए. अगर आपके पास एक क्रिएटिव माइंड है, आप आर्टिस्ट अच्छे हैं, आप ड्राइंग अच्छा करना जानते हैं, कलर का आपको अच्छा नॉलेज है, आप समझते हैं कि कौन सी चीज किसके साथ अच्छी लगती है, कौन सा कलर किसका अच्छा लगता है, लोगों को प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने में आपको मजा आता है. अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा प्रोडक्ट लोग यूज करें, मेरे को लगता है कि आई नो हाउ टू सिंप्लीफाई द वर्क दैट आई एम गिवन, तो वो एक अच्छा करियर चॉइस बन जाता है फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर करियर्स इन डिजाइन. एक डिजाइनर बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग पेइंग सैलरी है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है, और हम अपनी तरफ से कोई भी पर्टिकुलर टीम में एक डिजाइनर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ही होती है जितनी डेवलपर की होती है. इनफैक्ट जिस तरह से प्रोजेक्ट, जब जिस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चलती है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो पहले वो प्रोजेक्ट डिजाइन करता है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट की कोडिंग शुरू होती है. तो कोई भी अगर हम कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं तो जो काम डिजाइनर करके देगा वो हमारा सबसे पहले हमारे उस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन बनता है. तो अगर आपके पास एक क्रिएटिव माइंड है, अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स पुअर भी हैं, बट अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, अगर आपके मैनेजमेंट स्किल्स भी पुअर है बट आपका माइंड क्रिएटिव है, तो आपका यूआई यूएक्स डिजाइनर का जॉब, ग्राफिक डिजाइनर का जॉब, इस तरह के जॉब्स आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो सकते हैं. So I'll take a pause. If there is anybody who has any questions, I'm happy to answer that. चित्रांश ने क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है कि apart from strong programming and problem solving skills, what are the top 2 sought after skills
that a coder should have. Okay, strong programming and problem solving skills के अलावा I think there's one skill in my opinion that a good coder should have, which is the ability to learn quickly. और उसका रीजन ये है कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है मार्केट में, और अगर हम लोग अपने आप को क्विकली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, तो हम लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे. ये एक ऐसी फील्ड है जहां पे जो टेक्नोलॉजीज हमने आज से 3 साल पहले जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, 2 साल पहले इवन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उन टेक्नोलॉजीज के बारे में आज जो नई जनरेशन को पता भी नहीं है, फॉरगेट यूज करने तो दूर की बात है, इनको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता था पहले. तो इतनी फास्ट चीजें बदलती हैं. अगर आप कंपेयर करें, मैं दूसरे एग्जांपल से कंपेयर करता हूं कि अगर आप एक लॉयर हैं या अगर आप एक क्रिकेटर हैं, तो मोटा मोटा तौर पे जो अपने कॉलेज में सीखा, या क्रिकेट आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू करा तो आपने क्रिकेट के जो रूल सीखे, आपके पूरे करियर में वो रूल एप्लीकेबल रहते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही रहता है, इंडियन पिनल कोड वही रहता है. तो जो आप लॉज सीखते हैं मोटे मोटे तौर पे, ऑब्वियसली चीजें अमेंड होती रहती हैं, बट मोटे मोटे तौर पे वो लॉज मोर और लेस आपके साथ चलते हैं. बट एक टेक्निकल जॉब ऐसा है जहां पे आपका समझ लीजिए अपना पूरा सिलेबस ही हर साल बदल जाता है. तो जो आपके गेम जो आप खेल रहे हैं उसके रूल हर साल बदल रहे हैं. आपको एज अ डेवलपर एक ये स्किल जरूरी है कि आप चीजों को फटाफट सीख सकें, अदरवाइज इस दुनिया में आप बहुत ही जल्दी पीछे रह जाएंगे. और बहुत जल्दी पीछे रहने का मतलब ये है कि आपकी मार्केट की डिमांड और आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी वो सब पीछे छूट जाएगी अगर आप फटाफट नहीं सीखेंगे तो. We also believe that I believe we also have to be brushed. So एक तनिष्क का क्वेश्चन है, sir, I believe we also have to be brushed up with our design skills on similar software like Illustrator and Adobe Design. How long does it take to learn the same and should we take up courses? तो तनिष्क मेरा आंसर ये है कि इन टूल्स को ना आप इस तरह सोचिए कि it's like if you are a photographer, then this tool is like your camera, right? The tool is not going to make you creative. The tool is there to express your creativity. अगर आपके पास एक अच्छा क्रिएटिव माइंड है, एंड इफ यू वांट टू यूटिलाइज द पावर ऑफ दैट माइंड टू क्रिएट समथिंग, देन यू विल नीड अ टूल लाइक एडोबी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, XD, व्हाटएवर यू हैव इन माइंड. तो वो चीजों को सीखना डेफिनेटली जरूरी है. It is very very important that you have a very strong knowledge on these tools, but the reverse is not true, which means that if you have a very strong knowledge of Photoshop, it does not make you a good designer. You have to first have a creative mind and a strong knowledge of Photoshop to be able to produce good designs, electronic designs. और इनको सीखने के लिए अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहें, मैं तो ये कहूंगा यूट्यूब पे ही इतना इतना कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि एडोबी खुद इतना कंटेंट पब्लिश करती है. इसके अलावा इतने सारे यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, XD इस टाइप की चीजों को सीखने के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है. दीज आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. इतना कंटेंट अवेलेबल है कि जिसको ना भी मतलब इतना कंफर्ट हो इन सब टूल्स में, बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हो, वो भी मेरे ख्याल से महीने के अंदर अंदर इन टूल्स पे चैंपियन हो जाएंगे. बट नन ऑफ दीज टूल्स विल मेक यू अ क्रिएटिव माइंड. तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचिएगा मुझे फोटोशॉप आता है तो अब मैं एक UI डिजाइनर बन गया. होना ये चाहिए कि फोटोशॉप आपका टूल बनेगा वंस यू हैव योर क्रिएटिव माइंडसेट टू बिगिन विद. ठीक है, इस बात को जरूर मतलब कभी मत भूलिए. उसके अलावा हम अपने नेक्स्ट करियर ऑप्शन पे चलते हैं. नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज टेक्निकल सेल्स. ठीक है, अब टेक्निकल सेल्स का मतलब क्या होता है कि अब हम कोई पर्टिकुलर डील कर रहे हैं, कोई हम लोग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर अपनी कंपनी की बात कर लेते हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम लोग वी आर ट्राइंग टू सॉलिसिट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फ्रॉम अ क्लाइंट, राइट. अब उस क्लाइंट के पास हमारे ऐसे और भी कंपनीज हैं जहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट को करवा सकता है. तो एक टेक्निकल सेल्स पर्सन का काम क्या होता है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ढूंढता है जहां पे लोगों को हमारी ऐसी कंपनी की जरूरत है. And what he does is that he basically goes out there, convinces the client that a company like Squareboot will be a good fit for the kind of work that he wants to do. He will understand his requirement, he will convert it into a proposal, and then he will send that proposal, and then he will follow up on that proposal till the client says कि okay, हम इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम करने को तैयार हैं और हम उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ अपना चेक लिखने को तैयार हैं. तो एक टेक्निकल सेल्स का जो बंदा होता है वो क्या करता है कि बेसिकली ही इज यूजिंग अ पावर ऑफ सेल्स, बट ही इज बेसिकली जनरेटिंग revenue for a technology company. ठीक है, this cannot be and should not be compared with any other sales job. कोई फॉर एग्जांपल आप FMCG में है या कहीं पे है, ये उस टाइप का जॉब नहीं होता है. टेक्निकल सेल्स में आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज आनी जरूरी है
और जो टिकट साइज होता है वो ऑब्वियसली छोटा नहीं होता. इट्स नॉट लाइक सेलिंग अ शैम्पू कि हमें 100 रुपए का शैम्पू का बॉटल बेच के आना है. दिस इज अ वेरी बिग डील. तो उस बिग डील को सामने वाले को भी उसको भी अपना टाइम लगाएगा, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा. तो टेक्निकल सेल्स वाले बंदे का मेन काम होता है कि ये कन्विंस करे सामने वाले क्लाइंट को कि हम इस एज अ कंपनी इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं और हमारे पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है ताकि हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं और आपका जो एक्सपेक्टेड बजट है उसमें और एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है उसमें. तो अगर आपको फील होता है कि आपके पास एक सेल्स माइंडसेट है, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, you are able to persuade people, you are able to influence people. If you have that kind of mindset, then a technical sales job will be a very successful job. Technical sales jobs are also very, very, very well paying because companies are investing millions of dollars in finding out professionals who can do technical sales. It's still a very niche field compared to FMCG sales or other sales because technical sales के लोग इतने आराम से नहीं मिलते हैं. तो whoever people are able to find who are effective at their job, उन लोगों को बहुत अच्छी सैलरीज और बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं when they are able to make success in their career. तो ये एक ऐसी जॉब है, अगर आपके माइंड में अगर कोई भी टाइप का अगर आपको लगता है कि कोई सेल्स का अगर आपके माइंड का अगर आपका माइंडसेट है तो टेक्निकल सेल्स विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जॉब एज वेल, राइट. और जो अपना जो लास्ट क्या कहते हैं लास्ट जो आज का जो मेरा जॉब ऑप्शन होगा वो होगा द जॉब ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट. ये आपने शायद सुना होगा, बीए रोल कहते हैं इसको. और बीए रोल इज लाइक अ प्रिकर्सर टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल. और बीए का काम क्या होता है, इसका अगर हम देखें फुल फॉर्म इज बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट का मतलब कि सामने वाले बंदे को कि बिजनेस रीड्स को समझ के डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनको एनालाइज करके उनको आगे टीम में प्रेजेंट करना. ठीक है. तो अगर मैं क्लाइंट हूं, मैं किसी कंपनी से अपना टेक्निकल काम करवा रहा हूं, तो मैं उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ पहले उसके बिजनेस एनालिस्ट का मीटिंग करूंगा, उसको समझाऊंगा कि भाई मुझे ये सब चीजें चाहिए और वो सब चीजें जब वो मेरे को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बना के देगा मैं उसको अप्रूव करूंगा और उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट अपना आगे डिप्लॉयमेंट के लिए अपने डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट करेगा. तो एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल सिर्फ इतना होता है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज पे या लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड चाहिए. They should be able to communicate very well. They should be able to understand the requirements and needs of the client very well. They should be able to document those requirements very well and then pass it on to the team members who are actually going to build or work on that particular project. ठीक है. तो अगर आपके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इफ यू फील दैट यू आर अ गुड मेटिकुलस नोट टेकर, इफ यू फील दैट you have a good ability to listen and capture requirements of people who are coming to you and helping you out with explaining them what they need from you. अगर आपके माइंड में है कि आप एक अच्छे लिसनर और एक अच्छे नोट टेकर हैं तो अ बिजनेस एनालिस्ट रोल माइट ऑल्सो बी अ वेरी गुड फिट फॉर यू. ये सारे रोल जो मैंने आपको बताए हैं ये एक आईटी कंपनी के बहुत ही कोर रोल्स हैं. इनमें कोई भी ऐसा रोल नहीं है जो सप्लीमेंटल हो या जिसके बिना कंपनीज चल सकती हैं. ये सारे रोल ऐसे हैं जो कंपनीज के लिए बहुत एसेंशियल हैं और अगर आप अपने आप को किसी भी इन रोल में फिट देखते हैं यू विल हैव अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी सक्सेसफुल करियर in the IT domain without having to code anything for the rest of your life. So with that, I think I can just Rishabh and Shashank, I think I'll just close this part of the discussion. Well, Gaurav, very well explained and illustrated, right? Especially आपने जिस तरह से examples दिए थे, जो एक layman भी समझ सकता है. So I think it was superb, and I'm sure students have understood many things. Thank you. I'll have one more, take a different route, Gaurav. ये है क्या कि जो स्किल सेट चाहिए कौन से अपॉर्चुनिटीज होती है, राइट नाउ सिंस यू आर managing this company for say over 8 years, you would have seen so many job applications, Yeah. right? Yeah. So I wanted to ask you on that specific mistakes that you think people do when possibly they are applying for their first jobs, yeah even in their earlier part of the career. Yeah. कैसे mistakes आपने note किए हैं? Yeah, so very very interesting question, and I have seen this happening day in and day out. तो मैं अपनी तरफ से I would like to suggest a few things which I can give as tips and tricks to job seekers in the early part of their career. So one of the things that I have noticed is that people have a very confusing CV. मतलब उनको अपने CV जब वो CV भेजते हैं किसी जॉब के लिए तो हमें जब हम CV हम खोलते हैं तो it should be very clear to us
कि ये पर्टिकुलर जॉब सीकर हमसे क्या चाहता है, what kind of job is he looking for. The problem that I see sometimes is that people are not very confident about their skills, hence they just make up a CV in which there is no strong point which is evident in the CV. For example, वो उसमें ये clearly ये भी नहीं लिखना चाहते कि भाई we are looking for a software engineer position. They will write everything from their, you know, from their 10th marks to their 12th marks to their बीटेक का जीपीए सब कुछ डाल देंगे, पर ये कहीं मेंशन नहीं करेंगे कि उनको बेसिकली इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब चाहिए. अगर उनको इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब चाहिए तो व्हाट इज द सपोर्टिंग एविडेंस दैट यू हैव पुट इन ऑन योर सीवी व्हिच मेक्स मी कन्विंस्ड एज एन एम्प्लॉयर दैट यू विल बी अ गुड फिट, एंड हाउ आर यू डिस्टिंग्विशिंग और डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द अदर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस दैट आर कमिंग इन टू अ कंपनी लाइक अस. हमें एक चीज देखनी होती है सीवी पे कि ये बच्चा जो सीवी जो अप्लाई कर रहा है, जो पर्टिकुलर कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, इस कैंडिडेट में क्या खास बात है कि हम इससे इंटरव्यू करें. 99% ऑफ द सीवीज दैट आई सी उसमें कोई हमें स्पेशल या कोई एक यूनिक चीज नहीं मिलती जिस वजह से वो सीवी एक समझ लीजिए एक फाइल में बस ऐड हो जाता है, बट एक्चुअली उस पर्टिकुलर सीवी को कभी कोई अटेंशन मिल ही नहीं पाती. द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव सीन इज दैट पीपल सिंपली डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स as much as they should be doing on a CV to make their CV stand out. ये वाला एक छोटा सा टिप है कि अगर आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, योर सीवी शुड स्क्रीम आउट व्हाई यू विल बी अ गुड फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. अगर आपका सीवी आपको ये हमको क्लियर नहीं, देखिए मैं जब सीवीज देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है. आपने अपना सीवी बहुत मेहनत से बनाया, ठीक है, कई घंटे उस पर आपने स्पेंड करे, बहुत सारा उसमें एफर्ट डाला, उसको परफेक्ट बनाया, सब कुछ किया, ठीक है. बट एक रिक्रूटर जब एक सीवी को देखता है तो आम तौर पे यू विल बी शॉक्ड टू नो, आम तौर पे 3 से 4 सेकंड लगाता है पर सीवी, 3 से 4 सेकंड, ठीक है. एक बार घड़ी देखना और देखना कि 3 से 4 सेकंड में वो कैसे करता है. अगर उस सीवी में उसको 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया कि अच्छा ये एक अच्छी चीज है जो मुझे लग रही है कि जो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को डिफरेंशिएट कर रही है, यूनिक बना रही है, तो मैं उस सीवी पे फिर ध्यान से देखूंगा. अगर मुझे लगेगा कि हाँ सीवी जेन्युइन है, अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको आगे शॉर्टलिस्टिंग करूंगा, उसको फिर इंटरव्यू स्टेज पे आगे बढ़ाऊंगा. बट अगर मेरे को वो सीवी वैसा ही लगा जैसे मेरे पास हजारों सीवी और पड़े हैं, तो शायद मैं उस सीवी को बिल्कुल भूल जाऊंगा और अपने नेक्स्ट सीवी पे फोकस करूंगा. तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए जो मेरा सजेशन रहेगा, एडवाइस रहेगा बाकी यंग जनरेशन के लिए जो अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं, कि मेक योर सीवी pretty good, pretty appealing. Not only make it visually appealing, but also make sure that there are, you know, no stupid mistakes, no spelling mistakes. अगर आप उसमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजीज पे आपने क्या क्या काम किया है, आउटसाइड ऑफ कॉलेज आपने क्या क्या कोर्सेज लिए हैं, कौन से ऑनलाइन कोर्सेज में आपने इंटरेस्ट दिखाया है, पुट एवरीथिंग डाउन. आप एक अभी फ्रेशर हैं, आपके पास ज्यादा कुछ वर्क एक्सपीरियंस दिखाने को नहीं है, बट जो भी आपने काम किया एटलीस्ट वो तो डालिए. कई मैंने देखा है कई लोग उसको डालने में भी हेजिटेट करते हैं जिस वजह से कोई आउटकम नहीं आ पाता सीवी का. एक तो मैंने ये नोटिस करा है मिस्टेक. दूसरी मिस्टेक जो मैंने देखा है जो लोग अक्सर करते हैं वो ये करते हैं कि दे डोंट अप्रोच इंटरव्यूज विद कॉन्फिडेंस. मतलब जब उनकी फर्स्ट इंटरव्यू होती है, सेकंड इंटरव्यू होती है लाइफ में, तो वो बिल्कुल ऐसे डरे से सहमे से रहते हैं, जिस वजह से जो चीज उनको आती है, जो उन्होंने लाइफ में करी है और प्रोबेबली अच्छे से समझा भी सकते हैं, शायद वो उनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो भी नहीं अच्छे से बता पाते. एक इंटरव्यूअर जब एक सामने वाले कैंडिडेट के साथ बात करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज नॉट ओनली लुकिंग एट द करेक्टनेस ऑफ द आंसर्स, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर यू विल बी अ गुड फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ और नॉट. दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज समथिंग कॉल्ड अ कल्चर फिट. अगर आपके आंसर्स सही भी होंगे, बट अगर आपका तरीका आंसर को डिलीवर करने का एक नर्वस होगा, या आप अपनी तरफ से एक ऐसे जेस्चर्स करेंगे जिसमें लगेगा कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो आपके लिए वो पर्टिकुलर इंटरव्यू क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट एटलीस्ट सिट इन द इंटरव्यू विद अ स्ट्रेट बैक, विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड विद अ कॉन्फिडेंस कि हाँ जितना भी मुझे आता है एटलीस्ट मुझे उतना अच्छे से आता है. राइट, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है कि आज की जनरेशन थोड़ा इंप्रूव कर सकती है, स्पेशली द सीवी पार्ट, सो दैट एटलीस्ट यू नो दैट यू एटलीस्ट अनलॉक सम मोर अपॉर्चुनिटीज. अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि इतने सीवीज, इतने इतने कैंडिडेट्स एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि अनलेस आई सी समथिंग डिफरेंशिएटिंग in the CV or in the interview, there is absolutely negligible chance that the employer will be interested in you. If you just sound like or look like or appear like one of the thousands of CVs that we are getting, then please be rest assured that you will absolutely have zero chance in cracking any startup,
any job that you want. अगर आपको अपनी मनपसंद की जॉब चाहिए तो आपको इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा जिस तरीके से सामने वाले को आप में इंटरेस्ट आए. ठीक है. थिंक अबाउट इट लाइक अ मिनी डेटिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो. जब आप अपने सो टू स्पीक नए गर्लफ्रेंड और नए बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो यू पुट योर एफर्ट, राइट. यू पुट योर एफर्ट टू ड्रेस अप स्मार्टली, यू पुट योर एफर्ट टू मेक श्योर दैट यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. आप नहीं चाहते कि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो. इसी तरीके से एक वो जो एक्सपीरियंस है वो भी तरीके से डेटिंग एक्सपीरियंस की जैसा ही होता है. एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई, पोटेंशियल एम्प्लॉय, एक तरीके से थोड़े टाइम के लिए दे आर इन दैट मिनी डेटिंग एक्सपीरियंस वेयर द एम्प्लॉयर इज इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट आल्सो इज इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉयर. दोनों तरफ से चलता है ये चीज. बट एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए हमें अपनी तैयारी एज अ कैंडिडेट पहले करनी चाहिए और तभी वो इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा. अगर आप इंटरव्यू को कैजुअली लेंगे तो आपको आपके एफर्ट में भी नजर आएगा और आपके प्रेजेंटेशन में भी नजर आएगा और डेफिनेटली सामने वाले को क्लियरली फील आ जाएगी कि ये कैंडिडेट हमारे जॉब को लेकर सीरियस नहीं है. एंड कंसिडरिंग दैट द एम्प्लॉयर इज वेरी शॉर्ट ऑन टाइम एंड इज लुकिंग टू क्लोज द पोजीशन वेरी क्विकली, तो वो ऐसे कैंडिडेट्स को आमतौर पे फिर एंटरटेन नहीं करेगा. तो दैट इज माय शॉर्ट लर्निंग in terms of hiring people, especially at the fresher level. Thank you, Gaurav, for this. I think there are some other questions as well in the chat. Yeah. तो मैं एक बार उठा रहा हूँ. तो आयुष ने कुछ पूछा है, the most common non-tech jobs that are there that out seniors join are analysts. What are the skills required for that? I think you did touch base on business analyst. Yeah. So this is the business analyst role which I just described. I think what you need is a good, strong technical mind in terms of, it's not technical, I would say, but a strong analytical and reasonable mind. So who can understand problem statements and convert them into solutions. The main thing that we need is clarity of thought in terms of कि अच्छा सामने वाला बंदा हमसे ये चाह रहा है. Do we have the good amount of listening skills and a good amount of analytical skills to understand what he's trying to tell us and then convert that into a document which the rest of my team members can use in subsequent phases of the software development process. एक business analyst का काम है सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना. अगर उस प्रॉब्लम को समझ के वो उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करके एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अपनी टीम को प्रेजेंट कर सकता है, दैट्स अ जॉब व्हिच इज वेल डन फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट. Interesting. So Hazel is asking Gaurav, Yeah. what is your take on the go for an MBA versus work experience conversation? MBA versus work basically. How can a college student plan this for him or her before appearing for placements? Okay, so I mean the problem is that I'm not able to see the chat for some reason. So can you just repeat the question? Sure. So Hazel is asking, what is your take on go for an MBA versus work experience conversation? Yeah, okay, understood. So my take has been very clear. I think an MBA will make perfect sense if you see the industry working for 2-3 years. Then you will be able to relate to everything that the MBA is teaching you. आप कॉलेज के बाद भी डायरेक्टली जा सकते हैं. There is no problem in that. You are fully qualified to go for an MBA degree after college. But if you do it after a few years of work experience, then the MBA will automatically start to be a lot more appealing, because then you will be able to relate to the problems that are being discussed. You will be able to identify and basically solve the problems in a much better and in a much elaborate manner. तो मेरा सजेशन ये रहेगा, पर्सनल रिकमेंडेशन इज वर्क फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years बिफोर डूइंग एन MBA. और जस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना तो टेक ये था कि मैं तो फॉर एग्जाम्पल MBA के इतना फेवर में पर्सनली था भी नहीं. मुझे लग रहा था कि इफ आई एम लुकिंग फॉर अ टेक्निकल जॉब, a BTech degree is absolutely fine for me, which is going to be sufficient for me to get into mainstream technical work. तो इसलिए मैंने पर्सनली MBA का परस्यू करा ही नहीं. But if you're looking for an MBA degree, my recommendation is work for 2-3 years and then pursue MBAs to be able to do the MBA degree in a more effective manner. So, Gaurav, Navita had asked a question a little while earlier, and she had an interesting question. So I thought I'll just take this up now. Yeah. She's asking, at times there's a lot of pressure from parents to pursue core jobs since we are pursuing that course, and it takes a lot of risk appetite to change your career. How do you come to that decision? So what does core job mean? So I'm presuming अगर जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो उसी फील्ड में जॉब लेने के लिए प्रेशर होगा पेरेंट्स से. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट आई थिंक ये चीज अब आई थिंक थोड़ा पेरेंट्स भी आज की डेट में समझने लगे हैं कि नो मैटर व्हाट फील्ड यू हैव चोजन इन योर डिग्री, आई थिंक नेट सबको समझ आने लगा है कि द फ्यूचर इज इन IT.
तो मेरे ख्याल से द पेरेंट माइंडसेट इज चेंजिंग वेरी क्विकली. बट येस यू आर राइट कि कोर जॉब का प्रेशर सबके पास रहता है. बट आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड यू टू डिसाइड कि आपका इंटरेस्ट किसमें है. सो लेट अस से कि इफ यू आर परस्यूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, then would you be rather better off in pursuing electrical a company which is specialist in electrical engineering, or would you rather change your field to software development, software design in the beginning? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपने जो पहला स्टेप ले लिया करियर में, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लेट्स से कि आपने एग्जांपल के तौर पे आपने अपनी पहली जॉब पकड़ी, उसमें आपको 3 LPA का पैकेज मिला, ठीक है, फिर आपने अपनी जॉब चेंज करी या आपने एक्सपीरियंस आपको मिला, आपने उसको 3 को 5 LPA, 5 को 6 LPA बनाया. अब जैसे ही आपको, अगर आप कहेंगे बाद में कि नहीं मुझे अपना जॉब फंक्शन चेंज करना है और मुझे एक नया जॉब की फील्ड में स्टार्ट करना है, तो आपको कोई 6 LPA की जॉब नई वाली फील्ड में नहीं देगा. उसका रीजन ये है कि लोग कहेंगे आपके पास एक्सपीरियंस जरूर है बट आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, तो आपकी सैलरी वापस कम हो जाएगी, वापस 3 LPA या 4 LPA पे आ जाएगी, क्योंकि आपको अपना फील्ड चेंज करना होगा. तो लोग आमतौर पर डरते हैं इस बात से कि मेरी सैलरी तो मेरे को तो आदत पड़ गई है 6 LPA की, अब मैं 3 LPA पे कैसे सर्वाइव करूंगा. तो इस वजह से ये जॉब अपनी स्विच नहीं करते. तो आपका ये डिसीजन बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग में हो जाए कि आपको कोर इंजीनियरिंग का, अपने कोर फील्ड का कोर्स करियर बनाना है, या आईटी या कोडिंग या नॉन कोडिंग का अपना करियर बनाना है. Well, Gaurav, I think we've taken all the questions, right? And so before you leave, Gaurav, maybe what do you look for in an employee, right? When you're and any last advice that you would want to share with all the students out here? Yeah. So I have been very clear on this. I think what I'm looking for when I'm hiring in my company is I'm looking for passion. मुझे ऐसा लगता है कि if you are passionate about something, there is no way on earth that you will not be successful. You will figure it out and you will get it done. Somebody who is interested in doing something will find out and figure out the ways and means to do it and get it done. अगर कोई बंदा कितना भी शार्प हो, कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, बट अगर वो उस फील्ड को लेकर पैशनेट नहीं है, तो योर aptitude can take you only so far, but your attitude will take you very far. So that is the whole point, that if you are passionate about it, if you have the right attitude, then any problem on earth is solvable. So what we are looking for when we are hiring people in Squareboot is that we are looking for the right attitude, because my belief is if the attitude is correct, anything can be taught, anything can be groomed, and the person can be successful in the chosen career of his choice. Well, Gaurav, I think it was lovely conversation, and I'm sure tons and tons of knowledge out there for people to grab with both their hands out here. Thank you. Thanks a Yeah. lot. My pleasure being on this podcast. I'm hoping that I'm able to make a small difference in the lives of people who are listening here. And please feel free to reach out directly. Also, if there is anything that I can help you with, you can just go to my company website squarebot.com. You can find my email address there, and feel free to shoot an email. I'm available at all times. That's awesome, Gaurav. Thank you so much for your time. Thank you, everybody. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thanks. Bye. Thank you, listeners. See you next week again. Thank you.